راحت شنواری ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسر ہوں، صحافی بھی ہوں. پراؤڈ فیل کر رہا ہوں. سہیل افریدی میرے حلقے کا ہی ہے. وہ زمانہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گلیوں میں ہم آپ کے پیچھے بھاگتے تھے جب آپ کیمپین کرتے تھے اور لوگوں کے بیچ ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو کپتان کا ویژن پورا ہو رہا ہے. خیبر کا جوان ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کر پشاور جائے گا، وہاں پہ انٹرنیٹ یوز کر کے ریسرچ کرے گا. ہائر ایجوکیشن میں زیادہ تر ریسرچ ہی ہوتی ہے، یونیورسٹی میں پڑھایا تو نہیں جاتا، صرف ریسرچ کے لیے تیار کی جاتا. تو جاب ملے گی، پیسے کمائے گا. اسماعیل بلاگر کا بھی شکریہ کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو ہی کماتے ہیں. لیکن خیبر میں اسی نوجوان کو انٹرنیٹ پچھلے آئی تھنک 7-8 مہینوں سے بہت ہی متاثر ہے. تو مائی کوشچن از wholly solely relevant to education, entrepreneurship, digital media، اور جو ہمارے لوگ ان سے کما رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی اگر انٹرنیٹ بحال کرے تو پشاور کے اسپیسز تو ویسے بھی آپ نے پرووائڈ کرتی ہے. مطالبہ کروں گا کہ اگر سرکاری سیلولر نیٹورک پرائیویٹ نہیں بحال ہو سکتا تو جو پشاور کا وائی فائی جو اسپیسز ہے وہ خیبر لنڈی کوتل باڑ اور جنگلوں تک لے کے آئے. کیا پاسبل ہے یہ؟ اچھا، یہاں پر مسئلہ یہ ہے خیبر پختونخوا میں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہمارے مرج اضلاع ہیں، جو قبائلی اضلاع ہیں، اسپیسیفکلی پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہوتا ہے، اور پھر خیبر پختونخوا میں جو ہمارے مرج اضلاع ہیں تو ان کے ساتھ ہمیشہ جو ہیں ایک ان کو تجربہ گاہ بنائی گئی ہیں جہاں پر بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں. ابھی ہمارا ہولی سولی جو مرج اضلاع کا جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہاں پر وہ افغانستان کے ساتھ تجارت پر ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ بارڈر سیل کر دیا گیا ہے. جس طرح راحت بھائی نے کہا کہ ہمارا جو وہاں پر ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اگر وہ فرض کریں اپنے کاروبار کی طرف نہیں جاتا تو ان کو سب سے ایزی ذریعہ معاش جو ہے وہ انٹرنیٹ ہے. وہ فری لانسنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ ای کامرس بھی کر سکتے ہیں، وہ جو ہیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ڈیجیٹل میڈیا میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں. اور اللہ کرے کہ جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں وہ کالے چینل سے دور ہی رہیں. تو بدقسمتی سے کوئی اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. میں بار بار تقریروں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی تقریباً 60% سے زیادہ پاپولیشن یوتھ کی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ بلیسنگ بھی ہیں. اگر آپ فرض کریں ان کو اپرچونیٹیز نہیں دیتے تو پھر یہ ڈسگائز بن جاتا ہے، یہ آپ کے اوپر جو ہے لائبلٹی بن جاتی ہیں. اور پھر جب یوتھ دوسری طرف جاتی ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ بہت خطرناک پھر ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ تقریباً جو ہماری ریاست کی پالیسیز ہیں تو اس سے ہمارا نوجوان کافی منحرف ہو گیا ہے اور وہ دوسری طرف ہی جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ جائے. ہم نے ان کو روکنا ہے، ان کو سیدھے راستے پر ہی جو ہے انشاءاللہ تعالی رہنے دینا ہے، کہیں بھٹکنے نہیں دینا، اور نہ ہی جو ہے کسی ایک بندے کی غلط پالیسیز کی وجہ سے جو ہے وہ دوسری طرف جائے گا. بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، جس طرح ہم نے پشاور میں اور اس کے بعد ہر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں فری وائی فائی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ مرج اضلاع میں بھی اس طرح کریں گے. ہر وقت ماحول اس طرح نہیں رہے گا. جس طرح میں کہہ چکا ہوں کہ یہ مالی سال 2024 اور 27 یہ خیبر پختونخوا میں امن، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا انشاءاللہ تعالی. جی السلام علیکم، میرا نام نعمان علی وال ہے، میں واقع سے ہوں. میرا کوشچن نہیں ہے، میں نے ایک سجیشن دینی ہے. میں فری لانسر ہوں، ایک ایجنسی اونر بھی ہوں. ریسنٹلی مجھے فاسٹ یونیورسٹی میں فری لانسنگ پڑھانے کا موقع ملا، اور وہاں پہ پہلے بھی فری لانسنگ پڑھائی جا رہی تھی، لیکن پہلے جو لوگ پروفیسر پڑھا رہے تھے کیونکہ ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں تھا. میرا مارکیٹ میں الحمدللہ 14 سال کا ایکسپیرینس تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ جو میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ وہ زیادہ سکسیزفل رہے کیونکہ میں نے ہر چیز پریکٹیکلی کی ہوئی تھی. اب یہاں پہ سجیشن یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں کچھ اس طرح کا کرائٹیریا رکھا جائے کہ جو اسکل والے کورسز ہیں اس میں ہم فری لانسرز کو موقع دیں، وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ وہ آئیں اور وہ پڑھائیں، تو میرے خیال میں اس طریقے سے آپ زیادہ سکسیزفل اسٹوڈنٹس نکال سکتے ہیں. لیکن اس میں پرابلم ایک یہ ہے کہ جو ہم فری لانسرز ہوتے ہیں ہم کیونکہ ڈالرز میں کما رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو وہاں پہ فی پے کی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. تو اگر میں نے یہاں دیکھ رہا ہوں کافی سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں فری لانسنگ میں. اگر آپ ان کو ایز اے وزٹنگ پروفیسر اچھی اسکلس کے لیے ہائر کریں تو آپ کو بڑا اچھا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے.
تو اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ میں عمران خان کا بہت بڑا فین ہوں. تو ان کے جب احساس پروگرام چلے تھے تو میں نے خود سے ایک احساس کے ٹریننگ پروگرام شروع کیا تھا, جس میں پہلے 4000 بچوں کو میں نے فری پڑھایا, ٹوٹلی فری آف کاسٹ. اور ابھی تک وہ چل رہا ہے, میرا 11th بیچ چل رہا ہے. اور ابھی اس میں اس کے بعد کیونکہ میری ٹیم بڑی ہو گئی تھی, میں جسٹ 5000 فی چارج کرنا شروع کی تھی. میرے پہلے بیچ کا سب سے پہلا سکسیسفل اسٹوڈنٹ وہ سامنے مجھے آج تک ملا, یہ میں نے بلایا نہیں تھا, اتفاق سے آ گیا. تو میں نے کہا یہ بھی آپ تک پہنچا دوں. تو تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. انیس خان سوشل میڈیا انفلوئنسر, پہلے تو آپ دونوں کو مبارکباد. آپ جیسے ینگ لوگ سیاست میں آئیں اور اقتدار میں آئیں تو نوجوانوں کو امید ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کچھ کریں گے. آئین سائنسز کے عثمان غنی صاحب کو مبارکباد کہ AGC کی نے میں پہلی پوزیشن دی ہے. مجھے فخر یہ ہے کہ میرے 2 بچوں نے یہاں سے ابھی ڈگریاں کمپلیٹ کی ہیں. میرے 2 سوالات ہیں. یونیسیف کی تازہ رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں 2,54,00,000 بچہ اسکول سے باہر ہے. اس میں پنجاب میں 1,05,00,000, سندھ میں 74 لاکھ اور KP میں 45 لاکھ ہے. کیا ان بچوں کو اسکول میں واپس لانے کے لیے کوئی کریش پروگرام آپ کے پاس ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, حکومت کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں, ہر ایک کو نوکری نہیں مل سکتی, لیکن ان نوجوانوں کے لیے آپ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ ان کو ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں, تحصیل نہیں, یونین کونسل لیول پہ یوٹیوب مونیٹائزیشن, فیس بک مونیٹائزیشن, ٹک ٹاک مونیٹائزیشن کے فوراً کورسز شروع کروا دیں تاکہ یہ لوگ خود سے کمانا شروع کر دیں اور حکومت پہ بوجھ نہ بنے. شکریہ. اچھا, یہ فگر غلط کوٹ ہو رہا ہے جو یونیسیف کا خیبر پختونخوا کے حوالے سے, شاید پنجاب کے حوالے سے صحیح ہو یا غلط ہو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جو ہیں وہ تقریباً 22.6 ملین ہے, 26 لاکھ. اور اس کے لیے ہم نے پروگرام انشاءاللہ اس دفعہ بنایا ہے, اور میں نے جو چیف منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے 5 بلین روپیز اسپیشلی جو ہیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے لیے رکھے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور اس میں کیونکہ یہاں پر اکثر زیادہ تر جو ہیں ہماری بہنیں ہی ہوتی ہیں, ہمارے جو بچے ہیں وہی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا 2013 سے 18 کی حکومت کے دوران کہ جو مطلب ان کے پیرنٹس ہوتے تھے ان کو وہ اسٹائپنڈ دیتے تھے بچہ اسکول بھیج دیں. تو انشاءاللہ اس طرح کا کچھ میرا بھی ارادہ ہے. عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق یہ 2.6 ملین لوگ جو ہیں انشاءاللہ تعالی یہ اس سال ہم اسکول لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. یار یہ میں نے اس طرح کیا کہ میں بھی خود مڈل کلاس سے ہوں, تو وہ میری سوشل میڈیا اکاؤنٹ زیادہ چل رہے تھے, وہ بلو ٹک پہ تھا, تو میں نے اپنے سوشل میڈیا والے کو کہا کہ یار اس کو مونیٹائز کر دو تاکہ کوئی پیسے شیسے آئے, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آفیشلی جو ہے میں نہیں کر سکتا. بہرحال یہ ہونا چاہیے, انشاءاللہ تعالی اس پر جو ہے کام کریں گے اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم, میرا نام اسماعیل ہے اور میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ تو نہیں ہوں لیکن میں یہیں سے پڑھا ہے, اور وداؤٹ اینی ڈگری الحمدللہ اس یونیورسٹی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے کہ آج اگر آپ ڈیلیگیشن دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اپنے ساتھ اسلام آباد سے لے کے آیا ہوں, اور پورے پاکستان میں نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر کی دنیا کو بھی سکھا رہے ہیں, چاہے وہ دبئی ہے, سعودیہ ہے, بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے یا US میں لوگ بیٹھے ہوئے آن لائن کما رہے ہیں. اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اپنی نالج کے بیسس پر ہم اپنی سکلز دوسرے تک پہنچا رہے ہیں. پشاور سے میں اسلام آباد کیوں شفٹ ہو گیا, the only reason was کہ یہاں پہ سکلز کی کمی تھی, ہمیں رائٹ مینٹورز نہیں مل رہے تھے, یعنی کہ کنیکشن مسنگ تھا بٹوین دوز پیپل جو آلریڈی کما رہے ہیں, جو کہ باہر سے ہو کے آتے ہیں, ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے, اور لوکل کمیونٹی. یہاں پہ مجھے تو لوگ سر کہنے کے بہت زیادہ تھے, لیکن مجھے پتا تھا کہ میں سر کہلانے کے فی الحال قابل نہیں ہوں, بیکاز مجھے اور سیکھنا ہے. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ گورنمنٹ تو اس حوالے سے اسٹیپ لے رہی ہے, ڈفرینٹ ٹائپ کے پروگرام انہوں نے آرگنائز کیے ہیں جس میں PIC ہو گیا, تھریشر ہو گیا, اس قسم کے پروگرام, لیکن اسٹل یہ کمیونٹی آپس میں کنیکٹ نہیں ہو پا رہی. اس کمیونٹی کے بیچ میں کیا مسنگ ہے, اس چیز پہ گورنمنٹ کو اگر تھوڑا سا کام کر لے, اور جو آلریڈی فری لانسنگ, بلاگنگ
यूट्यूब ऑटोमेशन, टिकटॉक, जिस तरह से हमने बात की, उन लोगों को स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ, स्पेशल इन्विटेशन के साथ, इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। बिलीव मी कि केपी के अंदर इतना पोटेंशियल है, इतना आगे जा सकता है, लेकिन इसको थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। रिसेंटली हमने सवाबी में इवेंट किया, वो था सिर्फ 250 बंदों का इवेंट, 2300 से ज्यादा उसका फुटफॉल रहा है, और उस इवेंट ने मुझे मजबूर कर दिया कि हमें इस पूरे केपी के अंदर डिफरेंट टाइप के इवेंट्स करने चाहिए। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर इस पर थोड़ा सा गौर किया जाए। अच्छा, मेरी 100% सपोर्ट आप लोगों के साथ होगी। जिस भी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं फैसिलिटेट कर सकता हूँ, मिनिस्टर साहब और यहाँ डायरेक्टर साहब और जितनी भी मेरी टीम है, तो आप जो हैं, मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी यहाँ मौजूद हैं, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो और उस पर जो है कितने बे वसाइल लग रहे हों, हमारे नौजवान के लिए, हमारे पाकिस्तान के नौजवान के लिए इंशाअल्लाह ताला हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जो इमरान खान साहब की हुकूमत है वो हाजिर है, और इंशाल्लाह मैं सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। सर इफ़ यू अलाउ, देखिए ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस सोसाइटी को उठाना और यहाँ के नौजवानों को उठाना और यहाँ पे सॉर्ट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटीज़ क्रिएट करना। ये भी सॉर्ट ऑफ बिज़नेस एक्टिविटी है। इस्माइल साहब, आप तब शायद सर कहलाने के काबिल नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह कहलाने के काबिल हैं जब इतने ज़्यादा लोग लेके आए। तो आपने अभी आपने अब रिटर्न करना है उस धरती माँ को जिसने आपको पाला पोसा और बड़ा किया, और हम भी यही कर रहे हैं। हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हम भी यही कर रहे हैं ताकि हम इमरान खान के विज़न, फ़िक्र और नज़रिए को तक़वियत दे सके। और उनका नज़रिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, तो हम सब ने कलेक्टिवली करना है। गवर्नमेंट के पार्ट पे जो भी होगा, चीफ मिनिस्टर साहब ने प्लेज किया, आप आए, विल सिट टुगेदर, उसके लिए जो भी बनता है पेपर पे लाके, और इंशाअल्लाह ताला अपने नौजवानों के लिए करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला सरदार है और तारीख़ का तालिब इल्म। सर ने काफ़ी डिटेल में बात की कि मतलब रैंकिंग और क्वालिटी पे के बजाय क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस किया। हमारी यूनिवर्सिटी पेशावर, जिस तरह आपको पता है, मसाइल का शिकार है, और सबसे बुनियादी बात सर ने वो बिल्कुल डिस्कस नहीं की कि फ़ीस हमारे यहाँ और सूबों के दरमियान उसमें काफ़ी फ़र्क है। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे 60,000 दे रहे हैं फ़ीस, तो दूसरी सूबों में वो 24 और 35,000 फ़ीस वो दे रहे हैं। तो इसके हवाले से आप क्या कर रहे हैं और मतलब क्या करना चाहते हैं और क्या किया है? दूसरी बात ये कि आपने तो काफ़ी मतलब क्वांटिटी और नंबरिंग बताई कि इतनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे और हमारा ये प्लान है, लेकिन इस टेररिज्म के दौर में कि लोग मर रहे हैं, लोग सेफ नहीं है, शाम के बाद जिस तरह आपका अपना जो इलाका है उधर से हमारे दोस्त हजरात वो कहते कि हम रात को नहीं निकल सकते जिस तरह। तो इस हालात में हम किस तरह अपनी तालीम को आगे ले जाएंगे? और स्कॉलरशिप के हवाले से आपने बात की, लेकिन सबसे बुनियादी जो बात है वो ये है कि फ़ीस का मसला है। ऐसा है कि ये कंपैरिजन जो है, ये कंपैरिजन नहीं बनती, क्योंकि एक भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई यूनिफॉर्म फ़ीस स्ट्रक्चर नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आर ऑटोनमस बॉडीज़, ऑटोनमस एंटिटीज़ हैं। हर यूनिवर्सिटी का एक बोर्ड होता है एंड दे डिसाइडेड कि आगे क्या करना है। आइम साइंस का अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर है, पेशावर यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर है, गोमल यूनिवर्सिटी का अपना एक फ़ीस स्ट्रक्चर है। अब शायद पेशावर यूनिवर्सिटी में तारीख़ के डिपार्टमेंट के अंदर 40,000 हो और पंजाब में 30,000 हो, लेकिन अब ये भी पॉसिबल है कि पेशावर यूनिवर्सिटी में अलाइड हेल्थ साइंसेज में 60,000 और वहाँ पे 1,20,000 हो। तो ये तो वरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप कह रहे हैं कि आपने नंबर्स बताएं, नंबर ही हमने दिए हैं इसलिए बताएं। आप कह रहे हैं कि आप उन यूनिवर्सिटी के लिए क्या कर रहे हैं, हम यही कर रहे हैं कि 0.9 बिलियन जब था, जब PDM की हुकूमत थी, ऑल मिला के यहाँ पे एक साल नाजायज़ 0.9 बिलियन दिया। आपकी हुकूमत, क्यों आपकी इसलिए कह रहा हूँ कि ये नौजवानों की हुकूमत है, आपकी हुकूमत ने पहले साल 4.5, अगले साल 10 अरब और इस साल 12 अरब से ज़्यादा रखा हुआ है। तो यही हम इन यूनिवर्सिटियों को दे रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और इससे आगे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद भी देंगे। तो यही हम उनको दे रहे हैं और हमारी कोशिश है। बाकी यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडीज़ हैं और ये उनका डिसीजन है कि वो अपने तौर पे फ़ीस बढ़ाती है, घटाती है। हाँ, गवर्नेंस के हवाले से
हमने एक्ट के अंदर चेंजेस की है, वीसी के दौरानिए के हवाले से चांसलर को चेंज किया है, चीफ मिनिस्टर साहब बन गए हैं, रजिस्ट्रार के हवाले से बाकी चीज़ें, तो वो हम रेगुलर देखते हैं और उम्मीद है, बल्कि रैंकिंग सिस्टम आप देख लें, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में काफ़ी बेहतरी आएगी इंशाअल्लाह। देखिए, दुनिया के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एक चीज़, जियोग्राफिकल पोजीशन। आप कहीं भी चले जाएं, आप अपनी जियोग्राफिकल पोजीशन को तब्दील नहीं कर सकते। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का नेबर रहेगा, ये एक अटल हकीकत है। इसको हमने जो है ना विश पे नहीं लिया कि हमारी विश है और हमने उसको अपना नेबर बनाया हुआ है। अब अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान वार से लेके आज तक जो पॉलिसी रही है, फिर 3.5 साल अफ़गानिस्तान पे अशरफ गनी की हुकूमत थी, और आप को ज़्यादा इल्म होगा, यहाँ पे नौजवानों को भी इल्म होगा कि अशरफ गनी कंसिडर होता था इंडिया के करीब, ऐसा ही था। लेकिन कौन ऐसी डिप्लोमेसी कहला कि उन 3.5 साल के अंदर वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रही थी और वहाँ से कोई जो है दहशतगर्दी और इस तरह के इंसिडेंट नहीं होते? किसने कहला? किसने कहला बताए ना? इमरान खान ने कहला, इसी हुकूमत के रूह रवा ने कहला। अब बाउंड्रीज कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का मैंडेट नहीं है, ये फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट है, जो कि बुरी तरह फेल हो चुके हैं। वो लोग जिनके साथ हमने चाय पी अमेरिका के निकलने के बाद और जिसको हमने सेलिब्रेट किया, आज वो लोग जो है हमारे दुश्मन बने हुए। क्यों? क्योंकि हम फॉरेन फ्रंट पे फेल हो चुके हैं, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है। एक तरफ इमरान खान का, जहां का सरबरा अफगानिस्तान का वो मुखालिफ लोगों का पसंदीदा था, उसके साथ हमने डिप्लोमेसी के लिए और यहाँ पे अमन था। दूसरी तरफ जिनके साथ हमने चाय पी वो हमारे मुखालिफ हो गए। तो कहने का मकसद ये है कि ये मैंडेट फेडरल गवर्नमेंट का है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का नहीं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट पिछले साल चीफ मिनिस्टर साहब ने 35 अरब रुपया दिया आपके लॉ इन्फोर्समेंट, जो हमारे पुलिस है, जो CTD है, जो स्पेशल ब्रांच है, और जिस तरीके से वो प्ले कर रही है जो आम जराइम है। इस यहाँ पे पेशावर का बेटा हुआ कोई भी बंदा बाहर से तो छोड़े, मैं उनके सामने सवाल रखता हूँ, पेशावर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहब ने ऑफिसर्स लगाए हैं, क्राइम में कितनी कमी आई है? कोई तो सर उठा के दे के, कोई तो बंदूक उठा के दे के, सबको पता है। तो ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी और वो है फेडरल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, सबको वेलकम पेशावर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम जुनैरा रहमान है एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। पिछले 6 साल से मैं पेशावर में डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में पढ़ा भी रही हूँ और लड़कियों को भी आगे लेके आ रही हूँ बिजनेस में। मैं इस वक्त सर अपना एक बिजनेस रन करती हूँ अपने फादर के साथ, मेरी अपनी एजेंसी है। सर मैंने इस वक्त पेशावर में जो कि हालात देखे हैं, स्पेशली फीमेल से रिलेटेड, एक ये है कि इनको अवेयरनेस नहीं होती किसी भी स्किल्स के बारे में, किसी भी फील्ड के बारे में। मैं उनको सबसे पहले तो ये कहती हूँ कि डिग्री ज़रूरी है, खामखा डिग्री करो। इसके बाद आपके साथ डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ज़िंदगी भी गुजारनी है। तो सर मैंने अपनी लाइफ में ये प्रॉब्लम फेस की कि मैंने कंपनी अकेले बनाई है, अपने पैसे जोड़ के मैंने कंपनी बनाई है और स्टिल मैं उसमें स्ट्रगल फेस हूँ। मेरी कंपनी को इस वक्त 3 साल हो जाएंगे अगस्त में। मैंने अपने बाप से 1 रुपया नहीं लिया सर, मैंने हुकूमत से भी 1 रुपया नहीं लिया, ना ग्रांट लिया, ना लोन लिया। मैंने हमेशा अपने बलबूते पे किया सर। और लड़कियां नहीं कर पाती, उनके पास बिजनेस के बहुत सारे आइडियाज हैं। तो आप हुकूमत क्या प्रोवाइड कर सकती है फीमेल्स को? ऐसी कौन सी प्रोग्राम्स जो वो प्रोवाइड करेंगे ताकि जो मेरे फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैं इतना एम्पावर करती हूँ, स्किल्स सिखाती हूँ, और जब वो एक कारोबार करने के लिए आगे आती है तो उनके पास ना फाइनेंशियल सपोर्ट होती है और ना ही किसी किस्म की और सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी लोगों की तरफ से भी। तो मेंटरशिप हम सब यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, हम सब यहाँ पे सिखाते हैं, माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। बट सिर्फ अब एक चीज़ है, वो ये है कि उनको फाइनेंशियली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैंक यू। खुशी की बात है कि हमारी बहनें इतनी तगड़ी हो रही है कि वो जो हैं ख़ुद बिज़नेस कर रही हैं। और इसी हवाले से जो हमारे एहसास नौजवान प्रोग्राम के तहत लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन,
उसमें इस दफ़ा मैंने जो है अपनी बहनों के लिए ख़ास रकम रखी है कि वो सिर्फ जो है हमारी फ़ीमेल्स को ही मिलेगी, और इसके साथ साथ सिर्फ फ़ीमेल नहीं, हमारे जो माइनॉरिटी है उसमें ख़ासकर हमारे जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है वो हमेशा से इस तरह करते थे कि जो क्लास 4 की जॉब होती थी, स्वीपर की जॉब होती थी, उनके लिए बैठे रहते थे, और जब जॉब आती थी तो वो, इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, कब तक इन्होंने जो है इस क्लास 4 की जॉब के लिए रहना है। उनके लिए मैंने अलहदा से जो है लोन रखा है, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंशाल्लाह ताला उनको भी हम आगे लेकर आएंगे, अपना कारोबार करें और इस सोसाइटी में जो है अपना किरदार अदा करें। तो फीमेल्स के लिए भी हैं लोन इंशाल्लाह, माइनॉरिटी के लिए भी हैं, और नौजवानों तमाम सब लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला है। और बाकी जो भी सपोर्ट होगी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा आपका साथ देगी इंशाल्लाह ताला। सर एक तो अवेयरनेस की बात है, तो हमने आप लोग इसीलिए बुलाएं कि आप लोगों को अवेयरनेस दें। जो मीडिया होता है अवेयरनेस के लिए, वो तो आपको पता है कि वो दे नहीं रहा। जहाँ तक सॉफ्ट स्किल्स की बात है, तो इसी यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे आप बैठी हैं, यहाँ पे यूएन की तरफ से एक सेंटर बनाया गया है, और जहाँ पे सॉफ्ट स्किल दिए जाते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से वो है, और यही सॉफ्ट स्किल उनको दिए जाता है, नंबर 1। नंबर 2, यूटी मर्दान में हमारा यूएन वुमेन के साथ एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे दिया जाता है। हमारा एक है अख्तर हमीद फाउंडेशन के साथ फ्रंटियर वुमेन कॉलेज में, वहाँ पे दिया जाता है। और इसके अलावा फ़ीमेल स्टूडेंट को 6000 फ़ीमेल स्टूडेंट्स को डिफरेंट हमारे जो फ़ीमेल कॉलेजेस हैं वहाँ पे उनको फ्रीलांसिंग और ये सारी चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल से ये सिखाई जाती हैं, और यही मकसद है कि वो जो हैं अर्न करने के काबिल बने, उनको फीड ना हो बल्कि वो लोगों को फीड करें। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आज़ा नसीर और मैं वाकई से आई हूँ, और दिस इज़ द थर्ड टाइम कि मैं IIM साइंसेस में आई हूँ। फ्रीलांस करती हूँ, इससे पहले एजुकेशन सेक्टर में मेरा 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। एक चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बिकॉज हम तो पंजाब से बिलोंग करते हैं, बेसिकली कश्मीरी हैं, लेकिन लास्ट ईयर शांगला का विज़िट करना हुआ, और वहाँ पर जो उनकी सिचुएशन थी कोल माइनिंग और सारी चीज़ों से रेलेवेंट, बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ पे। और वहाँ के जो बच्चे थे जो फ्रीलांसिंग सीखना चाहते थे, उनके साथ एक ग्रुप बनाया, तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें ऐड हुए, लेकिन 6 महीने कोशिश करने के बावजूद मैं उनके साथ एक भी क्लास अरेंज नहीं कर सकी। मैं जूम पे करना चाह रही थी, व्हाट्सएप पे हो जाता, कहीं भी हो जाता। वजह इसकी ये थी कि वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। तो हम सिर्फ इस चीज़ को देखते रहेंगे कि वो इलाका ऐसा है कि माउंटेनस एरिया है, वहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, तो अल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ क्यों नहीं जाते? स्टारलिंक क्यों नहीं, एज अ गवर्नमेंट आप क्यों उनके साथ रब्ता नहीं करते, क्यों उनसे सर्विस नहीं लेते? बजाय इसके कि आप बड़े बड़े खंभे लगाएंगे, लोगों की ज़मीनों में तारे लगाएंगे, आप क्यों स्टारलिंक की तरफ नहीं जा रहे, ताकि कम अज़ कम एक सोर्स, जो बच्चा कॉलेज से पढ़ चुका है, वो सीखना चाह रहा है, फ्रीलांसिंग सीखना चाह रहा है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहा है, कोई और चीज़ सीखना चाह रहा है जो घर बैठे कर सकता है, सो व्हाई नॉट कि आप लोग उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करें एट ए गवर्नमेंट लेवल। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ तक जो हो रहा है पंजाब में, या जो चीज़ें चल रही हैं, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ ही चल रही हैं। गवर्नमेंट ने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लिए थे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते हैं KPK में, तो जितना पोटेंशियल आप लोगों में मुझे नजर आता है वो बाकी मुझे जगहों पे नजर नहीं आता। मैं पंजाब से हूँ, मैं फिर भी ये कह रही हूँ, हमें हर जगह अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे प्रोफेशनल्स, हमें KPK के लोग ही नजर आते हैं। तो व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस पोटेंशियल कि सिर्फ एक चीज के मार खा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया जो है वो हमारे मर्ज अजला थे, कबायली अजला। मैं भी कबायली हूँ, मीना खान भी कबायली हैं। हमारे से जो बड़ी ख़वातीन हैं, उस जनरेशन का हार्डली जो है तालीम वो 5th क्लास तक ही होता था। 5th क्लास के बाद जो है उन पर सबक छोड़ दिया जाता था या उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। अभी हमारी जो जनरेशन है, हमारी उम्र की और हमसे जो नीचे जनरेशन है, तो हमारे वालों ने तकरीबन FEC तक पढ़ा हुआ था, और अभी हमारे ख़ानदान में जो है बैचलर डिग्रीज होल्डर हैं, मास्टर डिग्री होल्डर्स हैं, फ़ीमेल अभी पढ़ रही है इंशाल्लाह ताला। तो वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया, और अभी जो है इंशाल्लाह ताला हमारी सोसाइटी फ़ीमेल्स को प्रमोट भी कर रही है और उनको सपोर्ट भी दे रही है। दूसरी बात, जो हमारी कनेक्टिविटी है तो उस पर काम जारी है। दरअसल मसला ये है हमारा
खैबर पख्तूनख्वा का कि यहाँ पर हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हम चीज़ें बना लेते हैं, फिर जो है एक जगह है जहाँ पर बंद कमरों में पॉलिसी होती है और फिर जो है हम पर तोप, गोले बारूद, ड्रोन, टैंक, ये सारी चीज़ें जो हैं मुसल्लत कर दी जाती हैं और फिर सारी चीज़ों का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। अभी हमने मर्ज अजला में और साउथ रीजन में हमारे यहाँ पर कनेक्टिविटी भी की, यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी बनाए, कॉलेजेस भी बनाए, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई, हर तरह की फैसिलिटीज़ हमने दी। लेकिन फिर जो है एक फ़ैसला हुआ कि यहाँ पर फिर दहशतगर्दी लानी है, फिर दहशतगर्दी लाई गई। अभी देखें वहाँ पर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, क्वाडकॉप्टर के हमले भी हो रहे हैं, वहाँ पर जो है गोले बारूद भी चल रहे हैं, तो फिर वो चीज़ तबाह बर्बाद है। तो सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अमन की ज़रूरत है। बाकी सूबों में और ख़ासकर जो है पंजाब में उनकी खुशकिस्मती ये है कि वहाँ पर तजुर्बे नहीं होते और अल्लाह ना करे कि कभी हो भी। हम पिछले 22 साल से मुसलसल इन तजुर्बों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी जी रहे हैं, हम फिर भी कम्पीट कर रहे हैं, हम फिर भी जो है अपने लिए जीने की वजह ढूंढ रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, उसके बाद भी जो है हम अपने रियासत के साथ खड़े हैं। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो पंजाबी जाग का नारा लगा देते हैं, कुछ लोग जो हैं सिंधु देश का नारा लगा लेते हैं, कुछ लोग जो हैं सूबे को अलग करने की बात करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा से कभी भी रियासत को ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो हम पहले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन हो और अमन के बाद ही जो है तरक्की, खुशहाली, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारा फोकस है इंशाल्लाह हमारे फार फ्लंग एरियाज़ शांगला जो हैं बिल्कुल आखिरी एंड है तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन आहिस्ता हो रहा है। वो भी जो है हमारा NFC शेयर अपडेट नहीं हो रहा। हमारा NFC जो है वो जिस तरह आपको पता है कि 14.62 अभी बनता है हमारा बनता है तकरीबन 18% से ज़्यादा, मतलब 1% का NFC शेयर अगर बढ़ेगा तो हमारा तकरीबन आज के हिसाब से 150 अरब रुपए तकरीबन बनता है। तो ये 3% अगर बनेगा तो ये 450 अरब रुपए बने। ये 450 अरब रुपए सालाना तमाम सूबे अपने आप में तकसीम करते हैं और जो हक जो है हमारा बनता है वो आपस में तकसीम कर लेते हैं और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये गैर आईनी है। लेकिन पाकिस्तान में हर काम जो गैर आईनी है वो हो रहा है और जो आइन और कानून की पासदारी जिनको करनी है वो सोए हुए हैं, क्या करें। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा नाम सैयद अस्तान अली शाह है और मैं फाइबर बिलियनियर हूँ, फाउंडर एंड CEO कनेक्टेड पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की लार्जेस्ट टेक कम्युनिटी है। सर थैंक यू फॉर बीइंग हियर और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। डन हो गया, ये जो है डिजिटल सीमेंट 15 साल दुबई केपी में गुजारे हैं और मैं सर इस्माइल ब्लॉगर का स्टूडेंट हूँ। उन्हीं की वजह से मैंने ऑनलाइन अर्निंग सीखी है और इसी तरह लेक्चर दे रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं YouTube ऑटोमेशन करता हूँ, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, 100+ चैनल चलाता हूँ, 25 बंदों की टीम है मेरे पास। सरगोदा, पेशावर और इस्लामाबाद में मेरे ऑफिस हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन किया है ये भी मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, ये भी टेक मिलियनेयर हैं। इस्माइल ब्लॉगर भी चले गए इस्लामाबाद, मैं भी यहाँ से चला गया इस्लामाबाद, ये भी इस्लामाबाद आ गए, ये भी इस्लामाबाद आ गए। क्यों सर? क्वेश्चन ये है इसलिए क्योंकि यहाँ पे सर वो आबो हवा ही नहीं है। ये मेरे हमसाए हैं, मैं इनके इलाके में रहता था, ठीक है। मैंने क्यों छोड़ा? यहाँ पे वो आबो हवा ही नहीं थी, कोई बात ही नहीं करता था। गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करती थी, लेकिन लोग भी नहीं करते थे। तो गवर्नमेंट से इतनी अपील है कि ऐसे इनिशिएटिव लिए जाएं, ऐसे माहौल, इवेंट्स बनाए जाएं कि जहाँ पे इनको यूज किया जाए, इनको अवेल किया जाए ताकि उधर जा ना सके। दुबई से इनवाइट किया क्योंकि AI का वो लेकर आ रहे हैं उसके लिए। अच्छा, AI अथॉरिटी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी ला रही है, AI अथॉरिटी हम भी ला रहे हैं और हम उसके लिए जो है हमने काफ़ी रकम रखी हुई है इंशाल्लाह ताला। और ये आपकी बात सही है, अब वो हवा मैं दूंगा, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। ऑलरेडी अफराद पढ़ा रहे हैं फ्रीलांसर वगैरह किसी एकेडमी में, तो उनको हायर करता हूँ और उनसे उनको ट्रेनिंग दिलवा रहा होता हूँ। तो सर मेरा यहाँ पे जो मेन सवाल है वो ये है कि माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर काम हो रहा है, यहाँ के बच्चों के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो ये एक बहुत बड़ी तादाद है जो मुआशरे की इस्लाह में भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। अगर हम इनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करें, KP में अगर कोई ऐसा
मंसूबा बनाया जाए कि मदरसे में अगर अलाउ नहीं भी कर रहा मदरसा, लेकिन हम बाहर कोई ऐसा ऑप्शन रखें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। मुझे भी किसी मदरसे में नहीं रखता, बहुत कम होता है, लेकिन जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और करने के लिए मुझे भी पिछले दिनों सवाबी में एक इवेंट होने जा रहा है, जिन्होंने मदारिस के लिए ये इकदाम किया है और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इस तरह की पूरी केपी में अगर ऐसे जो है कुछ इवेंट्स निकाले जाएं मदारिस के बच्चों को, क्योंकि मदारिस के बच्चों को और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा को सिखाने में बहुत फ़र्क है। एक प्रोफेसर अगर मदरसे के बच्चे को सिखाता है तो उसकी लैंग्वेज वो बहुत कम समझ पाता है, लेकिन उसी मदरसे से निकला हुआ आदमी जब उसको समझाता है उसी की लैंग्वेज में तो बहुत आसानी से चीज़ों को पिक कर लेता है और बहुत फ़र्क उसमें आ जाता है। तो इस हवाले से